Hello and welcome. This is the first part of the chapter India's external relations. Now, in this chapter, mainly the basic features of India's foreign policy, the underlying principles, and India's relations with the neighbors like Pakistan, China, the wars that India had to fight, and all these things, and nuclear policy of India. This has been discussed in the chapter. Now, in this first part of the video, I'll concise myself to the discussion of the basic features of India's foreign policy in the early years, that is Nehruvian foreign policy, and the directive principles related to external relations, guiding principles of India's foreign policy. Okay, so let's begin the chapter. First of all, we have to see the international and national context at the time when India became independent. So, India gained independence on 15th August 1947, and India gained independence in a very difficult atmosphere, difficult circumstance. So, that was difficult not only from the point of view of international politics but also internally. There are a lot of conflicts going on in the country. So let us first see the international context. The Second World War had ended. Remember always that 1945, like we divide the world history, if we divide the world history into two broad periods, it will be before the World War II and after the World War II, modern world history. Okay, so the end of World War II was is a major block in the history of the modern world. Fine. So major changes occurred, and the entire system of international politics transformed from that time onwards. ठीक है. Then formation of UN. So आप लोगों ने देख लिया है, फर्स्ट बुक हम लोग ने यूनाइटेड नेशंस पढ़ी है कि वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने के बाद ही यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन होता है, एंड द पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन था, इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर में इंश्राइंड थे, वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की बात करते थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. ठीक है. फिर आप लोगों ने कोल्ड वॉर भी पढ़ लिया है. सो इमर्जेंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर एज द सुपर पावर्स, और उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर. फाइन. तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इट इज चेंजिंग. दैट इज व्हाई आई सेड दैट एक मेजर ब्लॉक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड है, वो एक तरह से पूरी तरह से डिफरेंट था फ्रॉम द प्री वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड. ओके. देन एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये यूएन चार्टर में ही मेंशन था, एंड बिकॉज इंपीरियलिज्म had been considered as a major cause for the Second World War. So UN Charter said that imperialism in all its kind and colonialism should come to an end. तो जब colonialism end होता है, colonialism end होने के साथ ही birth of new and smaller nations. तो जितनी भी colonies थी वो free हुई. जो imperial powers थे उन्होंने freedom दिया colonies को. इससे छोटे छोटे नेशंस, बर्थ ऑफ न्यू नेशंस होता है, एंड दिस बर्थ ऑफ न्यू नेशंस अकर्ड मेनली इन द रीजन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया. तो एशिया और अफ्रीका में वी सी अ लॉट ऑफ न्यू नेशंस कमिंग अप. ओके. देन द इंटरनल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि हमारे घर के अंदर की जो पॉलिटिक्स थी या कंडीशन थी वो कैसी थी. तो आप लोगों को सबको पता है कि पार्टीशन ऑफ द कंट्री, independence came with a partition of the country. So two countries were created, India and Pakistan, and this partition was done on the basis of religion. Okay. Because of that, there a lot of communal violence was going on, so there was a lot of disturbance. ठीक है. Legacy of international disputes, जो हमारी colonial power थी ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के जितने भी डिस्प्यूट्स थे उनमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था, और वो हमने इनहेरिट किया. ओके. तो अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे दैट आवर प्रॉब्लम विद चाइना, वी इनहेरिटेड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द ब्रिटिश.
ओके, तो ब्रिटेन का जिन जिन भी स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट्स था या उनकी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, उनकी जो इंटरनेशनल जितने भी समझौते उन्होंने किए इंडिया को लेकर, वो सब इंडिया ने वैसे ही इनहेरिट किया। ठीक है, तो उसी तरह से हमको उसको आगे भी कैरी ऑन करना था, वो चीज़ भी थी। देन टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, poverty was a main problem in India at that time, and poverty had to be removed. In the last chapter itself, we have seen that development was considered to be a major challenge, and how we are going to develop the country, how we are going to bring the people out of the circle of poverty was a main task. ठीक है, तो जो भी फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री की होती है, it is always drawn in a context. The foreign policy of a country cannot be in vacuum. आप जो भी अपने रिलेशंस डिसाइड करेंगे कि हमें किस नेशन के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस दैट आर प्रिवेलिंग इंटरनेशनली एंड इंटरनली. सो हमारी इंटरनल कंडीशंस ये डिसाइड करती हैं कि हमको किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनानी है. ओके, और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है अगर हमने वो सही से समझ लिया है तो वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस डिसाइड करते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे इन द पॉलिसी दैट वी आर pursuing. So both these things, understanding both these things is very important. Okay, now second thing I want to say about foreign policy is that the foreign policy of a nation is decided by only one factor. Okay, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन the only factor that decides the foreign policy, that becomes the basis of the foreign policy of a nation, is its national interest. तो आपके नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा वो आप करेंगे. ओके, तो अगर हमारे नेशन का इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, अगर आपका राष्ट्र का हित इस चीज में है कि आप चाइना के साथ युद्ध कर लीजिए, तो आप युद्ध भी करेंगे, यू विल फाइट द वॉर. ओके, अगर आपके नेशन का इंटरेस्ट इसमें है कि आप अपने आर्क राइवल, जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, उससे ही आप जाकर को दोस्ती करें, तो आप वो भी करेंगे. And what is national interest? National interest is above the individual interest or party interest or the interest of the different governments ruling in the country at different point of time. Okay, तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो चीज हमारे लिए पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की है एक वक्त पे, वो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है. ठीक है, अगर देश की सुरक्षा ही खतरे में है तो फिर कोई भी चीज, आपकी कोई भी पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंडिविजुअल सेफ नहीं है. ओके, सो द नेशनल इंटरेस्ट इज द ओनली थिंग दैट डिसाइड्स द इंटरनेशनल और द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन. Okay, so keeping the international context, keeping the internal context in mind, and what is the objective? The objective is always the national interest of a nation. Okay, now let's see the basic aims of India's foreign policy as it is enshrined in the directive principles of states policy. So Article 51 of the Constitution, now in class 11th you all have seen that the directive principles mentioned from Article 37 to 51. Okay, so Article 51 of the Constitution that laid down the directive related to the maintenance of international peace and security, और इसी को माना जाता है कि ये हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेसिक एम या पर्पस डिफाइन करता है. Okay, so the directive principles, the 51 Article 51 says that the state shall endeavor to promote international peace and security, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, कि मतलब हम सभी देशों के साथ समानता पूर्वक और सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे. फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज हमने साइन की हैं, एंटर हुए हैं, वी विल रिस्पेक्ट ऑल दोज इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल लॉ को हम सम्मान देंगे. इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि बातचीत के माध्यम से या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के माध्यम से या फिर किसी थर्ड पार्टी के मीडिएशन से हम
उस इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को अपने सेटल करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप चारों प्रिंसिपल्स देख लीजिएगा तो उसमें कहीं भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपको अग्रेसिव नहीं दिख रही है। हम कहीं ना वॉर की बात कर रहे हैं, ना हम कहीं ये कह रहे हैं कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। कोई भी ना, हम अपने को किसी से जोड़ रहे हैं ना अलग कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्ट्रेस हो रही है, दैट इज पीस। ओके, और एक अनकही सी अंडरस्टैंडिंग है और मान्यता है इंडियन लीडर्स और इंडियन पॉलिटिक्स राइट अवे फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, नो फर्स्ट वॉर पॉलिसी, कि हम कभी भी, वी विल नेवर बी एन एग्रेसिव नेशन, we will never attack any country in the first instance, we will always raise the arms in defense। ठीक है, तो ये एक जो फॉरेन पॉलिसी की जो मूलभूत, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो डिफाइन करता है आर्टिकल 51। इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन मार्कर्स। वन मार्कर इस पे आ जाता है, पूछा जाता है। ओके, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं। Then India's links with the outside world before independence. ऐसा नहीं है that we started framing the foreign policy only from 1947. India had, the leaders of India had links with many leaders and governments even before independence। Okay, so first of all, India's struggle for independence, it influenced many nations, और बहुत से अफ्रीका और एशिया के nations में भी जो struggle था, resistance to colonial rule began। India became an example for many nations। Okay, then the nationalist leaders of India had contact with the nationalist leaders of the other countries as well। ओके, और इसी का जो नतीजा था वो अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे। अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो उसी का नतीजा था। ओके, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विद द लीडर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, दैट is there in your first book also। And then this is an iconic picture of Indian National Army, the biggest example of India's link with the outside world before independence। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी विद द पर्पस ऑफ थ्रोइंग द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। इसके बारे में आप लोग ब्राउज करिए थोड़ा सा इंटरनेट पे, इस पे मूवीज भी बहुत अच्छी बन चुकी हैं। सुभाष द फॉरगॉटन हीरो, बहुत ही अच्छी मूवी है, वो देखिए। तो ये जो लिंक्स हैं कुछ इंडिया के विद आउटसाइड वर्ल्ड बिफोर इंडिपेंडेंस एरा। ओके, नाउ नेहरूज रोल इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इस पे 2 मार्कर आता है इन द फॉर्म ऑफ दिस, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। तो 3 objectives। See, Nehru was his own foreign minister. He was the first prime minister of India. He was his own foreign minister, and he had an international standing in terms of foreign affairs। और बहुत ही लाइक नेहरू का जो इमेज था इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो ये था कि ये एक बहुत ही मजे हुए डिप्लोमैट है, और किस तरह से बातें करनी चाहिए और किस तरह से अपने कंट्री का स्टैंड रखना चाहिए और किस पॉलिसी को किस टाइम पे अडॉप्ट करना चाहिए, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो नेहरू वॉज रेस्पेक्टेड अ लॉट इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अब 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो नेहरूज फॉरेन पॉलिसी के, वो क्या थे? इट इज आस्क्ड मेनी अ टाइम्स फॉर 2 मार्कर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, हमने बहुत साल स्ट्रगल करने के बाद आज़ादी पाई थी। सो वी हैव टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता, भारतीय संप्रभुता की रक्षा हमें करनी है। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब कि आपको अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी है, कोई आपके ऊपर आक्रमण करके और आपकी टेरिटरी पे कब्जा ना कर ले, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है हमेशा। and to promote rapid economic development. So these were the 3 objectives of Nehru's foreign policy, often asked for 2 marks. Now this is the main question of this video. Ask
for 6 marks as well as 4 marks basic features of Nehru's foreign policy, and this is asked in many manners, like आपसे ये पूछ लेंगे कि अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनाई, या किसी भी तरह से लैंग्वेज चेंज करके इसको पूछा जा सकता है. ओके, सो फर्स्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम टू कैंप्स. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट आफ्टर 1945, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, the world was divided into two power blocks, that is one of capitalist, the other is socialist, USA and USSR, and there were power alliances also like the North Atlantic Treaty Organization, also called NATO, and Warsaw Pact led by USSR. Okay, तो पूरा ही वर्ल्ड ऑलमोस्ट जो ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस में डिवाइड हो गया था. Now इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ वर्ल्ड पीस. तो इंडिया का ये कहना था कि अगर पूरी दुनिया ऐसे ही दो खेमे में बंट जाएगी तो लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता है. लड़ाई को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये गुटबाजी बंद हो. ओके, सो दैट इज़ वाई इंडिया रिफ्यूज्ड अलाइंग इटसेल्फ और जॉइनिंग एनी ऑफ द पावर ब्लॉक so as to reduce the cold war tension. तो इंडिया अगर उस कोल्ड वॉर के टाइम में आप देखिए तो इंडिया ने एक बैलेंसिंग फैक्टर का काम किया दोनों ही पावर्स के बीच में, और कई बार जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज हुई थी देन इंडिया प्लेड द रोल ऑफ मेडिएटर एज वेल. ओके, नाउ दिस स्टैंड ऑफ इंडिया मेड द यूएस वेरी अनहैप्पी. व्हाई? बिकॉज यूएस वांटेड इंडिया टू जॉइन इटसेल्फ, और मेनली बिकॉज पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन कर लिया था. तो यूएस के अंदर एक ये बड़ा था कि उनका यूएस का ये मानना था कि अगर इंडिया हमसे नहीं ज्वाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उनका टिल्ट यूएसएसआर के फेवर में है. ओके, तो एक अनईज था, देयर वाज अ कंसिडरेबल अनईज इंडो यूएस रिलेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, और ये अनीज अभी आप आगे की पॉलिटिक्स जब देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स तो आपको क्लियर दिखेगा. अभी जो जितनी भी वॉर्स इंडो पाक वॉर हुई उनमें यूएस हेल्प पाकिस्तान इन सम वे और दी अदर. कहीं कहीं पे खुल के मदद की, कहीं कहीं पर हथियारों की सप्लाई करके इस तरह से मदद की, तो वो बिल्कुल ही क्लियर था. ओके, देन द सेकेंड फीचर ऑफ नेहरू's foreign policy was non-alignment. Non-alignment you all have done in the first book, so I am not going to elaborate much on it. सब इसका पर्पस एम किस तरह से क्या हुआ ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं. So Nehru's friendship with the founding father of NAM, Nasser of Egypt, Tito of Yugoslavia, and Nkrumah of Ghana, Sukarno of Indonesia. So this is there in the first chapter in the first book, which I have explained already in the videos of that chapter. Please refer to those videos. Okay, so non-alignment was the basic feature of India's foreign policy. यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ elaborate करूँगी, this one, because this is also asked for 2 marks. 2 instances when India deviated from the path of non-alignment. तो 2 examples पूछे जाते हैं जब दुनिया को ऐसा लगा that India left the path of non-alignment. First was in 1956 when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue and India led the world protest against the neo-colonial invasion. अब ये इंस्टेंस क्या था? सुएज कनाल आप सबको पता है कि इजिप्ट में है और नॉर्थ में है इजिप्ट के, और ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है. Now this canal was built by a French-British firm and it was controlled by the British and the French for till 1956. 1956 में इजिप्ट ने, जिसके रूलर उस समय थे गब्दल नासर. ओके, तो नासिर जो थे वो नेहरू के फ्रेंड भी थे, नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडिंग फादर. फाइन. सो इजिप्ट ने उस वक्त 1956 में सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया. नेशनलाइज कर दिया मतलब उन्होंने कह दिया कि सुएज कनाल इजिप्ट की है और अब ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ से चले जाएं, हट जाएं. ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक कर दिया था. इसको इंडिया टर्म्ड इट एज अ न्यू colonial invasion, that new type of colonial invasion, that when it is under the territorial jurisdiction of Egypt, then how can Britain कीप इट अंडर कंट्रोल. तो ये इस तरह का कुछ मामला था, और इसमें जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक किया तो इंडिया joined the world in condemning this attack. Okay, this then again, but in the same year 1956 में USSR invaded Hungary.
अब यूएसएसआर ने हंगरी को क्यों इन्वेड किया था? नाउ हंगरी वाज अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूएसएसआर, दैट यू ऑल नो, फर्स्ट बुक आपने पढ़ ली है उसमें, ठीक है। तो सैटेलाइट स्टेट था हंगरी यूएसएसआर का। बट यहाँ पे 1956 में हंगरी में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, एंड टू क्रश दिस रजिस्टर्ड मूवमेंट द यूएसएसआर फोर्सेस एंटर्ड इनटू हंगरी, और उसको क्रश करना शुरू किया। अब इंडिया ने इसको कंडेम नहीं किया। तो आप देख रहे हैं क्लियर टिल्ट है। ओके, तो उन्होंने ये कहा कि जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक किया तो ब्रिटेन को तो आपने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी पे अटैक किया, हंगरी में एंटर किया, तो आपने यूएसएसआर को नहीं क्रिटिसाइज किया। ओके, तो ये है पहला इंस्टेंस। और दूसरा इंस्टेंस है, this is mentioned several times when India signed a 20 years treaty of peace and friendship with USSR in 1971, and इसका context भी मैं आपको दे चुकी हूँ कि that India was expecting a war with Pakistan at that time, so therefore, और ये क्लियर था कि उस वक्त यूएसए पाकिस्तान की साइड से आएगा, तो टू बैलेंस, मेंटेन अ बैलेंस, इंडिया साइंड अ 20 years treaty of peace and friendship with USSR in 1971. Okay, so ये है, but despite these allegations, the non-aligned stand of India is respected a lot, and because of this stance, India's opinion was given a lot of value in international politics always. ठीक है, तो ये इसी वजह से हो पाया था क्योंकि हमने उस कितना प्रेशर का माहौल रहा होगा कोल्ड वॉर का, जब एक नए नेशन ने, एक पुअर नेशन ने जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं था, ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड ज्वाइनिंग एनी पावर, बिग पावर, वी विल बी इंडिपेंडेंट इन आवर फॉरेन पॉलिसी। तो ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था, और उस नज़रिए से अगर आप उसको देखिए तो ये एक बहुत क्लेवर स्टेप था from the point of view of the foreign policy of a new nation, that we could expect help coming from both the sides, USSR as well as USA। तो एक इस एंगल से भी इसको देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तीसरा है अफ्रो एशियन यूनिटी का। अफ्रो एशियन यूनिटी के बहुत से एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। India and newly independent countries of Africa and Asia, we had good contacts with them. India convened the Asian Relation Conference in March 1947. जब ये हो रहा था कि इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी अगस्त में, तभी इंडिया ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मार्च 1947 में। एंड देन आफ्टर दैट इन 1949 इंडिया सपोर्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडोनेशिया अगेंस्ट द डच कॉलोनियल रूल। तो इंडोनेशिया पे डच रूल करते थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापानीज ने एक्वायर कर लिया था इंडोनेशिया को। बट जब जापान ने सरेंडर किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो डच फिर आ गए। तो अब डच से इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ पे सुकार्नो ने गवर्नमेंट भी बना ली थी अपनी उसके बाद। तो उससे इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया लेड वो जो दबाव बनता है, इंटरनेशनल प्रेशर बनता है कॉलोनियल पावर पे कि आप विड्रॉ कीजिए वहाँ से, उसमें इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। देन इट ऑल्सो अपोज द रेसिस्ट रेजिम एपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। यू ऑल नो अबाउट दिस। गांधी जी ने ही वहाँ पे इसके खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई थी। और एपार्थीड स्ट्रगल में नेल्सन मंडेला के लिए महात्मा गांधी मेन इंस्पिरेशन थे। तो इसमें इंडिया ने पूरा सहयोग किया था। एंड देन द जेनिथ ऑफ दिस अफ्रो एशियन यूनिटी वाज द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस held in Indonesia in 1955, which paved the way for the non-aligned summit, the first non-aligned summit in 1961 at Belgrade. तो इसमें बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में बहुत से नए अफ्रो एशियन कंट्रीज के लीडर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसमें चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया था। And interestingly, China wanted to see itself as a leader of the Asian region in the post Second World War period. Okay, तो जो PRC है वो उसको खुद को उस तरह से भी देखना चाह रहा था, but I think in comparison to China, India emerged more as a leader of the Afro-Asian nations. Then okay, so this is till here in this video, and in the next video I will discuss about India's relations with China,
a very contemporary topic. You should know the conflicts, the issues of conflicts right from the scratch कि कहाँ से ये conflict निकल के आ रहे हैं सारे जो हमारे और चाइना के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और जिनसे हम निजात नहीं पा रहे हैं. ये कब तक चलेंगे ये भी नहीं पता है. ठीक है, तो उस पे हम कंसंट्रेट करेंगे. इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिएगा 6 मार्क्स के लिए. सो 4 पॉइंट्स आई हैव गिवन यू. If you have noticed, distance from the two camps, non-alignment, then Afro-Asian unity. Okay. So apart from these points, what else can you write? Apart from these points, you can write that India's foreign policy stress on peace. Okay. कि हमारी foreign policy peace oriented है. उसके बाद एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस. ओके, ये आप लिख सकते हैं. तीसरा ये कि इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड फॉर डेमोक्रेसी. ओके, तो जहाँ पे भी कोई गवर्नमेंट जेनोसाइड में पाई जाती है वहाँ पे इंडिया हमेशा ही मदद के लिए पहुंच जाता है. तो इस तरह की ऐसा कहा जाता है कि इंडिया हैज ऑलवेज, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज वेरी सॉफ्ट इन अप्रोच. Okay, so that has been said about India's foreign policy. Now, under the Modi government, we are observing major shifts in India's foreign policy. And I would like you to comment 1 or 2 shifts that you observe under the Prime Minister Modi's leadership in India's foreign policy. Okay, so on that note, I'll say bye-bye for now. In the second video, watch the second part for a detailed analysis of Indo-China disputes and relations. Okay, so see you till then. Bye-bye.